प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलमर्ग में हम 28 तारीख जुमा का दिन यानी कि फ्राइडे का दिन 11 बजे से बर्फ़ स्टार्ट होती है। उस वक्त हम आप देख रहे हैं विजुअल्स में बर्फ़ थोड़ी थोड़ी गिर रही है। मैं और मेरे टूरिस्ट काफ़ी खुश थे कि यहाँ पहली बार बर्फ़ गिरी और ये अनप्रेडिक्टेबल था कि कोई इसमें प्रेडिक्शन नहीं थी कि बर्फ़ पड़ेगी। दिस ऑल जो दुनिया का चलाने वाला अल्लाह ताला जो करे वो कर सकते हैं। हमारे में ये है कि कुन फयकून, अल्लाह फरमाते हैं हो जाओ तो वो हो जाती है। तो ये देख सकते हो इस वक्त साथ साथ हम गंडोला में उतरे थे। ये जो चेन लगा रहे थे उस वक्त भी उतना बर्फ़ नहीं था। ये गाड़ियों में जो ड्राइवर साहब आप देख रहे हैं इसमें और वो चेन लगा रहे हैं। और मैं जो मेरे टूरिस्ट फॉरेनर थे, फॉरेन से आए हुए हैं, तो वो मुझे इससे पहले ही बोल रहे थे कि हम खुश हो जाते कि अगर बर्फ़ हो जाती। मैंने उनसे ये डिस्कस करा कि वैसे इंशाअल्लाह आपकी किस्मत अच्छी होगी, बर्फ़ गिरेगी और बर्फ़ गिरने लगी। और ये इस वक्त जो ये विजुअल्स मैं दिखा रहा हूँ, ये रेस्टोरेंट के बाहर जो खिड़की है, हम कोलाही ग्लेशियर में लंच कर रहे थे। हिल टॉप होटल हिल टॉप जो है पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, तो अच्छी तरह से बर्फ़ गिर रही थी। हमारा यही था जहन में कि हम अब आराम से नीचे उतरेंगे क्योंकि हमारा डे ट्रिप था। लेकिन उसी दौरान मेरी कॉल आती है, ड्राइवर मेरे कॉल करते हैं कि हमारे पास टेम्पो है, क्योंकि हमने इससे पहले एक दिन ये देखा हुआ था। मैं रात के 3 बजे गुलमर्ग से लेकर नीचे टंगमर्ग पहुंचा था। रात को हम What's your name? My name's पहले Swan. दिन जिस Swan, दिन ये I'm हुआ from था इससे Myanmar. पहले, Myanmar. उस दिन हम Just share दिन your के 4 बजे experience निकले about थे, the तो Kashmir. रात के How do 3 you बजे like हम and टंगमर्ग is में snowing पहुंचे। in Gulmarg? So गुलमर्ग have से you हम explained, 11 please? बजे निकले थे, सॉरी First of all, it's 4 very बजे nice निकले थे, because the तो weather नीचे in Myanmar and सुबह के Kashmir दूसरे सुबह is के 3 बजे हम completely upside पहुंचे down. थे। तो हमारे जो So it's टूरिस्ट gonna be काफ़ी an खुश थे। unforgettable अभी आप experience देखेंगे for कि वो us कुछ here. कह रहे हैं। आप Before we come, we are wondering is it snow falling or not? So, but luckily we see the snow falling heavily. It's very fortunate for us to see snow because we didn't expect to see snowfall like this. So Shy. this is the first trip to Kashmir. You have with your guide, with your driver, all of the peoples. How you say the 10 out of 10. Okay. Facility is 10 out of 10. It's a good that we is very good. Thank you. Thank you very much. Here are the personnel is so sweet, they're so humble, they're so kind, they're ready to help us whenever we need help. So it's one of a kind because we've been to a lot of countries such as like Italy, Europe, Germany, Swiss, but this kind of hospitality is one of a kind. It's really 10 out of 10. So We love Kashmir. so you visited Sonmarg and Gulmarg. Give your marks that what you like most. About Gulmarg. Gulmarg, yes, and Sonmarg. Gulmarg ne pata bhi aap ko aisa show yaad The snow. The snow The snow. is in Myanmar. You don't. Myanmar, Snowing no there? snow at all. What's the humidity there? What's the temperature? I mean. Currently it's like 28, 30 in Myanmar. Yeah. Here it's like minus 20, so it's completely the opposite. Will you have there different kind of picnic spots there in Myanmar? Even you can share my Kashmiri viewers who are watching this In Myanmar, clip. maybe somewhere like Ie Ulue. Uh-huh. It's quite similar to Kashmir, but there's no snow there. But the weather is like quite similar. The temperature is quite similar. Uh-huh. Very cold there as well. So, what about the food? You have it here in Kashmir, We love Indian food. Indian food. For It's example, completely different from what we expected. We thought it would be like a lot of masala and stuff, but it's not like that.
It's much better than we expected. Let me, you ask me that in your country, what you eat there in your lunch, dinner? Normally we eat rice, Uh-huh. and curry. Uh-huh. Curry kind of. And Like in non-veg? Sorry? No, in non-veg, what do you like? Non-veg. Yes. Non-veg kebab. Chicken. You like chickens here. Chicken, roti, prata, It's in breakfast. It is in breakfast. Yeah, I think food are like mostly we kind of eat similar. Noodles. noodles. Yeah. Thank you very much. You give bye bye. You give 2 or 3 minutes to our channel. That's We love Kashmir. We That's love very nice. Ahmed, right? We love Thank you very much. आप देख सकते हैं कि जो ये गाड़ियां लाइन में हैं उधर से इधर। हम 2 बजे निकले थे वहाँ से गंडोला से, और ये गाड़ियों की लाइन आप देख रहे हैं। शाम के 11 बजे हम जो पार्किंग एरिया है गुलमर्ग का, वहाँ पहुँचे। ये गाड़ियाँ जो कतार में हैं, ये दर्शाती है, ये दिखाती है कि ये लाइनों में उधर से इधर पूरा जो ट्रैफिक है गुलमर्ग में, जितने भी टूरिस्ट थे वो वहाँ स्टक है। हम 2 या 4 सेकंड चलते थे, फिर रुक जाते थे। तो इसी दौरान मैंने ये सोचा कि मेरे साथ जो फॉरेनर्स है, कम से कम हम उनके लिए कोई चिप्स वगैरह लाए। तो हमने चिप्स लाए उनके लिए। तो 11 बजे के बाद हमने यही सोचा कि हम रात का जो स्टे करेंगे वो होटल में ही करेंगे गुलमर्ग के, और हमने स्टे करें गुलमर्ग में ही किया। फिर हम सुबह 6:30 बजे निकले और हम पहुंच गए 9 बजे नीचे टंगमर्ग में। और जो हमारा दूसरा ग्रुप था वो रात के 11 बजे निकला और सुबह के 6:30 बजे वो टंगमर्ग में पहुंचा। और जब हम सुबह जहांगीर से निकले तो हमें मेन जो गुलमर्ग सेंटर में जो बाहर वहाँ छोड़ रहे थे। तो ये हम चल रहे थे, ये गाड़ी में स्कॉर्पियो करी, तो उसको हम लेके हम जा रहे थे। तो सामने आप देख रहे हैं, फिर रास्ता बंद था। फिर हमने काम करा कि हमने वहाँ पुलिस जो अथॉरिटीज़ है उनसे गुजारिश करी कि हमारी जो एक कस्टमर है, लेडी है, वो हार्ट प्रॉब्लम है, उसकी शुगर है उसका, तो वो प्लीज़ हमें छोड़िए। फिर उन्होंने कहा कि आप SHO से बात करें। तो आप देख लीजिए। आज संडे का दिन है। सैटरडे के दिन हम यहाँ गुलमर्ग आए थे, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि इतनी बर्फ़ होगी। हमारी जो एक गाड़ी है वो रात को सैटरडे के दिन 11 बजे निकली है और 6:30 बजे संडे के दिन पहुंची नीचे। आप ये अंदाज़ा कर सकते हो कि बर्फ़ कितना है। और जो अथॉरिटीज़ है वो रिस्क नहीं लेना चाहती है कि गाड़ियों को अलो करें। हम भी कल रात को उन्हीं के साथ थे। 2 बजे से लेकर हम चले थे गंडोला से, लेकिन शाम 9 बजे हम जो आई लव यू गुलमर्ग टूल है वहाँ तक पहुँचे थे। फिर हमने और जो हमारे बॉस है तो उनके साथ भेंट वार्ता की, इंटरेक्शन किया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है कि हमारे साथ पेशेंट भी है, ग्रैंड माँ हमारे साथ है, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, अच्छा है कि आप यही होटल करें। फिर हमने जहांगीर में होटल किया। 12:30 बजे सोए और 4 बजे हम उठे। 4 बजे से लेकर अभी बज गए 8, सवा 8। अभी तक भी हम नहीं निकल रहे हैं, लेकिन भला हो हमारे साथ हमारे दोस्त, इनका नाम यासिर है, तो इन्होंने ऐसे तैसे करके स्कॉर्पियो लाई है। तो हम इस वक्त बराबर पुलिस स्टेशन गुलमर्ग के पास खड़े हैं। कोई मूवमेंट नहीं लग रही है, लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अथॉरिटीज़ से ये कहें कि जो हमारे फॉरेनर्स आए हुए हैं उनको कम से कम वो उनको छोड़ा जाए, क्योंकि उनकी जो ये जो उनका डिपार्चर है वो बहुत जल्दी है। तो ऐसे तो
2 बजे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो हमें डर है कि जब आप गुलमर्ग से इस बर्फ़ में निकलें, अगर आपकी 5 घंटे लेट या 10 घंटे लेट भी हो फ्लाइट, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये लेके चलना है कि सुबह आपको 5 बजे निकलना पड़ेगा गुलमर्ग से। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। हमारे साथ हमारे दोस्त यासिर है, तो हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने नीचे से गाड़ी ऐसे तैसे करके टंगमर्ग से ऊपर लाए, और उसमें भी इनको बहुत टाइम लगा। आप ये सोच सकते हैं कि जो गाड़ी सैटरडे के दिन 11 बजे शाम को निकली हो और संडे की दिन सुबह 6:30 बजे टंगमर्ग पहुंची हो, आप ये सोच सकते हैं कि कितना टाइमिंग लगता है। इससे पहले भी मैं एक बार इसमें फंसा था। 15 घंटे लग गया। 15 घंटे लगते हैं, यस। मैं भी 3 बजे लगभग 2 बजे हम निकले थे और हम मॉर्निंग में वहाँ पे 6 बजे पहुँचे। कितने बजे यासिर भाई निकले थे आप? कल दिन के 2 बजे निकले थे हम इधर से लंच करके, और आज मॉर्निंग में हम 6 बजे पहुँचे गुलमर्ग। अच्छा। तो क्या लगता है, अभी तो 8 बज गए, क्या लगता है कितने बजे हम नीचे पहुँचेंगे? इंशाल्लाह ये छोड़ दे तो हम 8:30-9 बजे तक नीचे पहुँच जाएंगे। अच्छा। जी। आपने सुना यासिर जो है ड्राइवर है, होनहार ड्राइवर है, नई गाड़ी है इनको। हम होप करते हैं कि इन्हें तरक्की मिले। ये है इतनी अपडेट है अभी तक। आगे हम वीडियो में आपको ये दिखाएंगे कि गुलमर्ग में कितनी बर्फ़ पड़ी है, और जो सड़क का हाल क्या है वो भी हम दिखाएंगे आप। तो श्रीनगर में भी बर्फ़ हो रही है, गुलमर्ग में भी ऑलमोस्ट बर्फ़ हो रही है। जो हमारे बाकी दोस्त हु पीपल फ्रॉम आउटसाइड country, they are watching me, they are like my videos. I am very thankful to them, but this is my moral duty that day to day I will update all kind of videos. थैंक यू वेरी मच। चले, मेरे जो दोस्त श्रीनगर से हैं और बाहर मुंबई दिल्ली से हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि गुलमर्ग आना तो अच्छी बात है एंजॉय के लिए, लेकिन आप आ सकते हो अपनी तरह से, लेकिन आप खुद नहीं जा सकते हो जब तक आप गुलमर्ग ने आपको छोड़े। चलिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। हम टूल पे पहुंचे थे, लेकिन वहाँ जो हेड कांस्टेबल है वो अलो नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। अब हम SHO साहब के पास जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन, ताकि वो कुछ लिख के दे, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे साथ फॉरेनर्स है, उनमें से एक बुजुर्ग खातून है जो हार्ट पेशेंट भी है और शुगर पेशेंट भी है। वो विल सी व्हाट वी विल डू, otherwise we are just stuck on the road. Even we have chain car with us. So मेरे साथ है, तो अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं हम देखेंगे कि what happened. ये हालत है रोड की। हम थैंक यू वेरी मच, हम जो गुलमर्ग पुलिस SHO साहब को हम थैंक यू करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी। हमारे साथ हार्ट पेशेंट है और शुगर पेशेंट के बुजुर्ग थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ कैसे रोड पे फंसी हुई है। तो इसलिए अथॉरिटीज़ और पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जगह जगह पे गाड़ियाँ हैं। हालांकि हमारी जो गाड़ी है ये नई स्कॉर्पियो है। जब इन्होंने कहा कि इसमें चेन लगी हुई है और हमारे साथ जो ड्राइवर है वो भी मंजे हुए हैं, तो ये है सिचुएशन। यहाँ हम अब उतर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर लगभग 2 घंटे हम वहाँ खड़े रहे। आप देख सकते हैं कितना बर्फ गिरा हुआ है। आप देखिए कितनी फिसलन
वहाँ से गाड़ी एक आ रही है, वो लाइट दिखा रही है कि आप होशियार रहिए, साइड में रहिए, क्योंकि जब आप चलते हैं, ये शायद सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी है, जब भी आप कहीं उतरते हैं या चढ़ते हैं तो उसमें आपको ब्रेक नहीं दिखानी होती है ना एक्सीलेटर। आपको आराम से एक्सीलेटर ऐसा दिखाना पड़ता है जैसे आप मक्खन से बाल निकाल रहे। देखिए ये गाड़ियाँ यहाँ कल की हो, लोगों ने छोड़े हुए हैं। आधे जो गाड़ियाँ हैं वो लोकल्स की है, प्राइवेट गाड़ियाँ। ये 3 गाड़ियाँ, ये वो जिग पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ से आराम से जाना पड़ता है। कितनी स्लो एंड स्लोली चलना पड़ता है। हालांकि मैं कल होटल जहांगीर में था तो मैंने कम से कम 12:30 बजे देखा कि जेसीबी जो है रोड क्लियर करते हैं। उस वक्त भी वो अपना काम बखूबी निभा रहे थे, लेकिन बर्फ़ इतना है कि आप इस पे आप नहीं ड्राइव कर सकते हो कि अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल्स ना हो। वहाँ से भी एक स्कॉर्पियो ब्लैक आ रही है और यहाँ से हमारी स्कॉर्पियो ब्लैक है। देखिए इसमें भी चेन लगे हुए हैं। ये देख लीजिए JK01T2630 भी रास्ते पे इन्होंने छोड़ी हुई है, सोमो भी है छोड़ी हुई है। रात को लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब गाड़ियाँ 2 नीचे से आ रही है। जब तक आपके पास चेन ना हो तब तक आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ये दूसरी गाड़ी है JK05N2968। इसको भी साइड में इन्होंने रख दिया। हालांकि ये स्कॉर्पियो है, ये गाड़ी जा सकती थी नीचे, लेकिन जब आप में स्किल्स ना हो, ये दूसरी गाड़ी है 0377। आप में स्किल्स ना हो तब तक आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं इन हिली एरियाज में। देखिए ये दूसरी गाड़ी है, ये नई स्कॉर्पियो है। शायद देखो कैसे ये टर्न होके उस साइड में गई है। ये JK09D5172 है। तो ये उतर रहे हैं हम, हालांकि 13 किलोमीटर है, लेकिन इसमें उतरते हुए आपको बहुत ही होशियार और बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। रोड बिल्कुल लगा हुआ है। देखिए कितनी गाड़ियां रास्ते पे। देख लीजिए इन्होंने, ड्राइवरों ने गाड़ी यही छोड़ी हुई है और अपनी जान उन्होंने बचाई। कितनी गाड़ियां यहाँ रुकी हुई है। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के। ऐसा दिन किसी को न दिखाए। हालांकि हम तो नहीं फंसे थे रोड पे, हमारे जो दूसरे दोस्त थे वो। पर ये देख लीजिए, ये इनमें चेन्स लगी हुई है और ये नीचे से जो है एम्प्लॉइज यहाँ टंगमर के काम करते हैं गुलमर्ग। ये देख लीजिए, इसमें भी ये कैसे ड्राइव कर रहे हैं, तेज चल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था इस गाड़ी को, बट करते हैं। मेरे कस्टमर काफी खुश है, दे आर वेरी हैप्पी ऑल यार। सून गोइंग टू देयर होमलैंड। ये गाड़ियाँ साइड में देख लीजिए आप। देखिए ये दूसरी गाड़ी है JK02AP। कह रहे हैं कि हम बहुत डरे हुए हैं, जो हालात ऊपर थे जैसे हम फंसे हुए थे। ये दूसरी गाड़ी है JK02044651। यहाँ जब भी आप घरों कहीं हो तो आपको हॉर्न करना पड़ता है।
जोड़ा हुआ है और ये दूसरी गाड़ी है। देखिए कितनी गाड़ियाँ। कल रात को आप ये सोच सकते हो कि कितनी फिसलन होगी। इवन अरमानिया गाड़ी भी राइट साइड में पड़ी है। ये इसके साथ है लेकिन फिर भी बच गई है। हर किसी से गुजारिश करूंगा जो भी विंटर में गुलमर्ग विज़िट करना चाहे, फैमिली से हो या न हो, कमर्शियल गाड़ी वाले या प्राइवेट गाड़ी वाले जो भी आए, तो कम से कम अपने साथ चेन्स का खास ख्याल रखें। जो टायर में लगाते हैं कम से कम 2 टायर्स में आपके चेन होने चाहिए। हाँ जी, तो इसका खास ख्याल रखिए क्योंकि जो गुलमर्ग से ऊपर से नीचे जो सड़क आती है टंगमर्ग तक, उसमें इतनी फिसलन रहती है। पूरा जो रोड है वो पूरा शीशा बन जाता है और उस पे तो आप समझ सकते हैं खुद। थैंक यू वेरी मच। आप देख लीजिए कैसे जो गाड़ियाँ नीचे चली गई है, कैसे इनको पुल कर रहे हैं, देखिए।
बढ़िया